Dear students, today we will discuss about auxiliary verbs. Already in the previous class I told you that auxiliary verbs are also called helping verbs. They help us to form the tense of a sentence. They tell us the tense of the sentence or the time of the sentence. So auxiliary verbs are of two types, principal auxiliaries and modal auxiliaries. Principal auxiliaries already we discussed in the previous class. They are the different forms of the verb to be, like is, am, are, was and were. Then the different forms of the verb have, like has, have and had. And the different forms of the verb do, like do, did, does, done. So these are all the different forms of the principal auxiliaries. Like here you can see this is, am, are, was, were and has, have, had, the different forms of the verb have, and these 4 D's, do, did, does, done. These are all the different forms of the verb do. So these are all auxiliary verbs. Today we will discuss about the other type of auxiliary verbs, that is modal auxiliaries. So here this is modal auxiliaries. So what are modal auxiliaries? You see, these modal auxiliaries, they are usually used to show the mood of the speaker. Okay, it shows the mood, what is the mood of the speaker. It shows the ability, what the speaker can do. Okay, so here these modal auxiliaries in English grammar we have here. Today we will discuss about some 9 to 10 modal auxiliaries. I am going to tell you about some 10 modal auxiliary verbs. So these modal auxiliaries, some examples you can see here are given, like can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to. So about these all the modal auxiliaries we will discuss today. So what do you mean by the modal auxiliary verb can? You see, they can be used in different meanings. They can be used in sentences, and the meaning of the verb can changes according to the sentence, according to the mood of the speaker. Like here in the first one, you see can is used. I can speak French fluently. तो हियर इट इंडिकेट्स द कैपेसिटी, वो जो है उसकी कैपेसिटी बताता है कि वो फ्रेंच फ्लुएंटली बोल सकता है. ओके, सो इट शोज द कैपेसिटी ऑफ द स्पीकर. देन द सेकेंड, ही कैन कम हियर टू नाइट. सो हियर द मीनिंग ऑफ कैन इज पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि वो आज रात को यहाँ पे आ सकता है. सो द मीनिंग ऑफ कैन, इट इज डिफरेंट इन बोथ द sentences. Then come to the next modal auxiliary, could. Could you please tell me your name? So this is here could is used as in the form of a request. You are requesting someone to please tell me your name. Then could I borrow your book for a day? So here you are asking permission. आप उसकी permission ले रहे हो किसी की कि क्या मैं तुम्हारी book एक दिन के लिए borrow कर सकता हूँ. So this is taking permission from someone. Okay, so the meaning of could is different. It depends upon the mood, how you are using it. Then if you want to take permission, you can use may also. Not only the could, you can also use may. Like may I come in. So here may means, that means you are taking permission. Okay, may I come in, taking permission from someone to come in, or you are asking to come in. Then in the second sentence, he may come by the night train.
सो हियर मे मतलब कि वो आ सकता है आज रात की ट्रेन से. सो दिस इज पॉसिबिलिटी, चांसेस है, मतलब आप श्योर नहीं हैं लेकिन चांसेस हैं. सो हियर मे इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी विच मीन्स देर आर सम चांसेस, पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है आज रात की ट्रेन से. द नेक्स्ट माइट, यू माइट हैव सीन द ताज, मतलब कि आप श्योर नहीं हैं लेकिन शायद कि वो देख चुका है पास्ट में. ओके, यू माइट हैव सीन द ताज, तुमने शायद ताजमहल को देख चुके हो, तुम ताजमहल को देख चुके हो, मतलब पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, चांसेस है आपने शायद पास्ट में उसको देख लिया है. देन सेकेंड वन, माइट आई यूज़ योर टेलीफोन, तो इसमें क्या है, हम परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ. ओके, और ये प्रेजेंट में अभी आप उससे बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं उसको कि माइट आई यूज़ योर टेलीफोन. सो दिस इज टेकिंग परमिशन एंड इन द प्रेजेंट टेंस अभी. देन कम टू शैल, I shall buy a new car next month. शैल मतलब कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस बता रहा है कि मैं फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ में एक नई कार खरीदूंगा. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस, यू शैल गेट अ रिवार्ड, तो यहाँ पर जो है आप किसी को बता रहे हो कुछ या उसको पक्का मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ रिवार्ड मिलेगा. यू शाल गेट अ रिवार्ड मतलब तुमने इतना अच्छा काम किया है कि तुम्हें तो इसके लिए रिवार्ड मिलेगा. यू शैल गेट अ रिवार्ड. देन कम टू द नेक्स्ट मॉडल, शुड. वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो यहाँ पर जो है शुड का मतलब क्या है, हमारी ड्यूटी, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करें. So here should means duty, it is our duty, ये हमारा फर्ज है. Second, I told them that I should not be called for the dinner, तो ये क्या बताता है कि मैंने पहले से ही बता दिया है उनको कि मुझे डिनर के लिए मत बुलाना, जो कि फ्यूचर में आने वाला है वो डिनर, जो भी प्रोग्राम होने वाला है डिनर का, मुझे उसमें मत बुलाना, उसने पहले से ही उनको बता दी है ये बात. सो इस टाइप के सेंटेंसेस को जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है और आपने उसके बारे में पहले ही बता दिया है, तो फ्यूचरिटी इन द पास्ट, फ्यूचर के बारे में आपने पहले ही बता दिया है कि मुझे उस डिनर के लिए मत बुलाना. द नेक्स्ट मॉडल, विल. अतुल विल गो टू मुंबई टुमारो, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस बता रहा है विल कि मुंबई जाएगा अतुल कल. नेक्स्ट, इट विल बी द इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर जो है हम गेस कर रहे हैं ओके फ्यूचर में कि ये जो है ये इलेक्ट्रीशियन बनेगा फ्यूचर में, लेकिन हम श्योर नहीं हैं, वी आर जस्ट गेसिंग, हम गेस कर रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रीशियन बनेगा. इट विल बी द इलेक्ट्रीशियन. नेक्स्ट, वुड. ही वुड आस्क फॉर मनी नाउ एंड देन, तो ये जो है एक हैबिट बता रहा है किसी की कि उसकी आदत है कि वो आए दिन पैसे मांगता रहता है. सो इसमें हम वुड यूज़ करेंगे. ही वुड आस्क फॉर मनी नाउ एंड देन, तो ये जो है हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है, किसी की आदत है, ये उसकी आदत है पैसे मांगने की. सो हियर वी कैन यूज़ वुड. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस इफ़ यू सी, ही वुड बी हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो है आप श्योर नहीं हैं लेकिन आप बता रहे हो कि ही वुड बी हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, वो अपना ब्रेकफास्ट अभी ले रहे होंगे. ही वुड बी हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट, मस्ट. स्टूडेंट्स मस्ट रीड देयर लेसन्स रेगुलरली, तो यहाँ पर जो है एक एडवाइस दे रहे हैं हम उनको, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि उन्हें अपने लेसन्स रेगुलरली पढ़ने चाहिए.
सो स्टूडेंट्स मस्ट रीड देयर लेसन्स रेगुलरली. सो हम बिल्कुल ज़ोर दे के बोल रहे हैं बच्चों को, एम्फेटिक एडवाइस बोलते हैं इसको, बिल्कुल ज़ोर दे के जब हम बोल रहे हैं कि आपको जो है अपने लेसन्स रेगुलरली रीड करने चाहिए. ही मस्ट बी अ गुड सर्जन. तो यहाँ पर जो है हम उसके बारे में कुछ डिसीजन ले रहे हैं या फिर कुछ उसके बारे में कंक्लूजन बोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो जो है एक अच्छा सर्जन होना चाहिए. ही मस्ट बी अ गुड सर्जन. द रेलेवेंस ऑफ मॉडल्स डिपेंड्स मच अपॉन द यूज़र. तो ये जो मॉडल्स हैं इनका यूज़ जो है डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो उनको किस वे में यूज़ करता है, उसका मूड क्या है. मैनी मॉडल्स हैव मोर देन वन मीनिंग. तो कुछ मॉडल्स हैं तो उनके मीनिंग्स एक से ज़्यादा मीनिंग्स भी होते हैं और हम इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में द यूज़र यूजेस दम अकॉर्डिंग टू द मूड, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है. देन देर इज़ वन मोर मॉडल ऑट टू. ऑट टू मतलब कि इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, जैसे कि वो आपकी एक मॉरल ड्यूटी है. लाइक वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मतलब ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑट टू. ओके, नाउ हियर सम पॉइंट्स आर गिवन. रिमेंबर दैट इज important points. An intransitive verb cannot form its passive. intransitive verb क्या होता है? जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है. वर्ब जो है इट स्टैंड्स अलोन, उसको ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की. सो उसका जो है पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता. व्हेन वी रीड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, at that time I will tell you more about this. The next point, all auxiliaries and modal auxiliaries have their negatives. तो ये जितने भी मैंने आपको अभी मॉडल्स बताए हैं ये सारे, ओके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, इन सब के नेगेटिव्स भी होते हैं. नॉट लगा देंगे इनके पीछे तो इन सब के नेगेटिव्स भी बन जाएंगे. ओके, सारे जो पहले प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में बताए थे इन सब के नेगेटिव्स होते हैं. ओके, नॉट लगा के सबके नेगेटिव्स बन जाते हैं. ऑक्सिलरीज हेल्प इन इंडिकेटिंग टेंस. तो ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये हमें बेसिकली जो है टेंस बताते हैं या फिर मूड बताते हैं. मॉडल्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट. तो मॉडल्स के जो है अभी मैंने बताया आपको डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस में. नेक्स्ट, auxiliaries and modal auxiliaries help in the formation of questions and question tags. So these auxiliaries हैं और जो modal auxiliaries हैं it helps in the formation of questions या question tags. Like you can take one example like you see here. Yes, let us take the first sentence. I can speak French fluently. So here the modal is can and the subject is I. तो अगर हम इन दोनों की प्लेस को चेंज कर देंगे, कैन आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, तो ये क्या बन गया? क्वेश्चन बन जाता है. ओके, सो इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. सेकेंड सेंटेंस, ही कैन कम हियर टू नाइट. अगर हम इसके भी प्लेस चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट ही और मॉडल कैन का, कैन ही कम हियर टू नाइट, तो ये बन जाता है क्वेश्चन. ओके, और इसमें पीछे एंड में लगेगा फिर क्वेश्चन मार्क. सो दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स. सो दीज मॉडल्स and these auxiliaries they are also used to form questions and question tags. Then we have exercise E. Fill in the blanks with appropriate modal auxiliaries. First one, I dash have told the truth. तो इसमें क्या हो सकता है? I should have told the truth भी हो सकता है, I would have told the ट्रूथ, दोनों हो सकता है. नेक्स्ट, आई नेवर इमेजिन्ड ही डैश बी सो फूलिश. तो यहाँ पर आएगा ही वुड. आई नेवर इमेजिन्ड ही वुड बी सो फूलिश. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना फूलिश निकलेगा. यू डैश नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति. सो यू शुड नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर. Next,
You dash not hate the poor. तो you should not hate the poor. हमें जो है गरीब लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए. You should not hate the poor. The next, he dash have passed had he worked hard. अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता. तो इसमें क्या आएगा? he would have passed had he worked hard. वो पास हो जाता अगर वो कड़ी मेहनत करता. 2 and 2 dash always make 4. तो यहाँ पर आएगा will. 2 and 2 will always make 4. 2 और 2 मिला के 4 बनते हैं. What cannot be cured dash be endured. जिसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते तो उसको क्या है, हमें बर्दाश्त. जैसे कहीं कोई चोट लग गई है तो उसका इलाज नहीं है तो हमें उसको क्योर नहीं कर सकते, तो उसको एंड्योर करना पड़ेगा, मतलब उसको बेयर करना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा. सो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. नंबर 8, मे गॉड ब्लेस हिम विद अ सन. नेक्स्ट, यू डैश विन इफ यू हैव अ विल. तो यू विल विन इफ यू हैव अ विल, मतलब तुम ज़रूर जीतोगे अगर तुम्हारे पास इच्छा, दृढ़ शक्ति है. हियर इन द फर्स्ट विल का मतलब है यू विल विन, फ्यूचर टेंस वाला, तुम जीतोगे. इफ़ यू हैव अ विल, यहाँ पर जो है विल पावर जैसे बोलते हैं दैट विल, ओके, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति जो, सो दैट इज़ विल. इफ़ यू विल विन इफ़ यू हैव अ विल, मतलब अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो आप ज़रूर जीतेंगे मैच. The old man earns so that he dash feed his children. So that he can feed his children. वो ये old man जो है पैसे इसीलिए कमाता है ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके. He can feed his children. Now I come to exercise F. Fill in the blanks with appropriate models given below. Some of them may be repeated. So here some models are given in the box. From these you have to choose. Some may be repeated. First one, your uncle dash be a good surgeon. तो यहाँ पर must, your uncle must be a good surgeon. A good person dash flout the rules. So a good person shouldn't flout the रूल्स, वो रूल्स को नहीं ब्रेक करता. नेक्स्ट, वी डैश ओबे आर पेरेंट्स. वी ऑट टू आएगा यहाँ पर. वी ऑट टू ओबे आर पेरेंट्स. ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पेरेंट्स की बात माने. अ स्कूटर ड्राइवर मस्ट वेयर अ हेलमेट आएगा, ओके, मस्ट. नेक्स्ट, dash you mind having a cup of coffee with us. Would you mind having a cup of coffee with us? Next, we dash get up early in the morning. तो ये बता रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. We shall get up early in the morning. He that is down dash fear no fall. So he that is down must not fear no fall. तो वो जो पहले से ही नीचे है उसको गिरने से डर नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट, हरी डैश कम आफ्टर द शो इज़ ओवर. तो हरी विल कम आफ्टर द शो इज़ ओवर. तो हरी जो है शो जब ख़त्म हो जाएगा तब आएगा वो. You dash take rest for some time. You should take rest for some time. You dash go against the wishes of your parents. You must not go against the wishes of your parents. So now we will come to the next topic, forms of verbs. So now here you can see some sentences are given, like the first sentence, Harish writes a letter. So here the verb is writes.
he wrote a letter. So here the verb is wrote. He is writing a letter. So here the verb is writing. He has written a letter. So here the verb is written. So here if you see, all these verbs are the forms of the main verb जो है that is writes, और ये जो हैं बाकी wrote, writing, written, these are all the different forms of the main verb writes. And here you can see that written को जो है किसके साथ, इसके साथ क्या लगा है आगे, has के साथ यूज़ किया गया. सो ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, has, have, had. They are called the past participles. So in this next topic we are going to learn about the present, past and past participles. So here this is the main verb, here is writes, and he wrote a letter. So here wrote is the past tense of the verb writes. past tense में वो letter लिखा था, उसने एक letter लिखा था. he wrote a letter, that means in the past में वो काम हो चुका है. So here the form of the verb changes from writes to wrote. वो change हो जाता है, उसका form writes से क्या बन जाता है, wrote. The next, he is writing a letter. तो इससे क्या पता लगता है कि वो अभी letter लिख रहा है. Okay. So here we have used is. Helping verb use किया है हमने यहाँ पर, is. And writing से पता लगता है कि वो अभी letter लिख रहा है. That is the form of the main verb. writes का form है दूसरा writing. He has written a letter. तो इसमें जो है past participle यूज़ किया गया है has. He has written a letter. वो letter लिखा है, उसने एक letter लिखा है. So here some exercises, some words are given, different forms of the verbs are given. Okay, here table is given of the different forms of verbs. In all the sentences, writes is the main verb. The words wrote, writing, written are its various forms. So here in this, on this page, the different forms of the verbs are given in the present, in the past and past participle. मतलब has, have, had के साथ क्या यूज़ करेंगे. ओके, पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं बेटा, जो कि has, have और had के साथ यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स. ओके, सो इनके साथ जो है ये थर्ड वाली लाइन है वो वाली, जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड पास्ट टेंस हो गया. एंड एक्सेप्टेड जो है जब हैज़, हैव, हैड के साथ यूज़ करेंगे तब हम लगाएंगे ये एक्सेप्टेड. ओके, ही हैड एक्सेप्टेड, ही हैज़ एक्सेप्टेड. ओके, दे हैव एक्सेप्टेड. तो ये जो है हैज़, हैव, हैड के साथ लगते हैं ऐसे. सो यू हैव टू रीड ऑल दिस फॉर्म्स. ओके, आज आप लोग जो है ये पेज नंबर पढ़ेंगे पूरा. पेज नंबर 57 इन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ गिवन. ऑल दिस यू हैव टू गो थ्रू. ओके, ये सारे आपको पढ़ने हैं एंड ट्राई टू लर्न देम. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.